Every attempt to influence a nation happens on the battlefield. Sometimes it begins with money. Money that quietly crosses borders, funds organizations, shapes narratives, sponsors protests, influences policy, and in some instances is linked to campaigns against strategic infrastructure, unlawful religious conversion, and networks accused of acting against India's interests. India is home to one of the world's largest civil society ecosystems. Every year, thousands of organizations receive foreign contributions, and the overwhelming majority use them to serve society. But when foreign money enters at this scale, transparency isn't optional. Because if even a handful use that money to influence India's future instead of serving its people, the consequences can be enormous. That's why the FCRA Amendment Bill 2026 has been introduced. So, what exactly changes? First, no more hiding assets. If an organization loses or surrenders its FCRA license, assets created using foreign contributions can now be taken into government custody through a newly created designated authority. Second, loophole is now closed. No more gaming the system. Earlier, organizations could simply let their license expire and continue using foreign-funded assets. That loophole is now closed. Third, personal accountability. No more hiding behind the organization. The people running it can now be held personally accountable for violations under the law. Fourth, a clear red line. Foreign contributions can continue to support education, healthcare, humanitarian work, and legitimate faith-based activities. But they cannot be used for religious conversion activities. The bill isn't about stopping genuine charity. It isn't about discouraging humanitarian work. It's about ensuring that foreign money cannot operate in India without transparency and accountability. Because every sovereign nation protects its borders. This bill protects something just as important. Its democracy, its development, its sovereignty. Because foreign money should help build India, not influence it. जय। ये आपने ये पूरा वीडियो देखा, आपको समझ आ गया होगा कि एफसीआरए बिल है क्या, ठीक है ना। तो एफसीआरए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 मार्च में ही लोकसभा में किया था। अभी मॉनसून सत्र में इसके बारे में फिर से चर्चाएं बढ़ गई है। ये वो बिल होता है ना कि आपको पता है कि कभी भी किसी देश को अगर मेरे को बर्बाद करना है ना तो हमेशा जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा चीजें पैसे से भी होता है। जैसे आप देखेंगे भारत में बहुत सारे जैसे यूएसए, यूके, फ्रांस, ये सब ऐसे देश है ना जो भारत में ना एनजीओ के नाम पे बहुत सारे पैसा भेजते हैं। आप बोलेंगे कितना ही भेज देता होगा, यूएस कितना ही, 50,000 करोड़ तो पिछले 4 महीने का वो है डेटा। आप अगर और 4 महीने का ऐड करेंगे ना तो $बिलियन, जो पाकिस्तान 2 मिलियन 3 मिलियन के लिए अमेरिका से भीख मांगता है, अमेरिका उसको देता नहीं है, और इस जगह पे ये पूरा का पूरा भारत में भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो इस जगह पे क्या होता है ना, ये पैसा देखिए एनजीओ में यूज होता है, नो डाउट। क्रिश्चियन कम्युनिटी एनजीओ में बहुत काम करती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है और भी क्रॉसेस बॉर्डर्स, फंड ऑर्गेनाइजेशंस, शेप नैरेटिव्स, स्पॉन्सर प्रोटेस्ट, इन्फ्लुएंसेस पॉलिसी। अगर $बिलियन में अगर आपको पैसा मिलेगा ना तो आप बहुत सारे सही काम में तो लगाएंगे ही, बट कुछ पैसा गलत कामों में भी जाता है। तो इंडिया एफसीआरए बिल को प्रस्तुत इसलिए कर रहा है ताकि जो भी इसमें फंड है ना हम उसको क्या कर सके, रेगुलेट कर सके कि कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है। और ये कोई नया चीज नहीं है, दुनिया का हर देश हर अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए ये करता है। दिस इज नन अदर देन द नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये एक नेशनल सिक्योरिटी का बात है और हमको पता होना चाहिए कि फॉरेन का पैसा आ रहा है तो हम इसको यूज कहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जब बात चल रहा था ना तो इसी में अमेरिका का ये जो है ना इसका नाम है राइली मूर है, ये डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बोलते हैं ना चाटुकारिता वाला आदमी है, ये वैसा है। ये बोलता है अमेरिका के कांग्रेस में कि अगर इंडिया ने ना ये बिल को इम्पोज किया तो हमारा और इंडिया का संबंध खराब हो जाएगा हमेशा के लिए। सोच रहे हैं आप ये लोग कितना ध्यान रखते हैं। आप बोलेंगे यूएस के इतना मिर्ची क्यों लग रहा है यूएस को, क्योंकि यूएस ही सबसे ज्यादा फंडिंग भेजता है इंडिया में।
और सिर्फ यूएस चिढ़ रहा है इसलिए ना कि भारत कैसे रेगुलेट कर सकता है, हम तो पैसा भेज रहे हैं सब चीज ठीक करने के लिए, हमारा तो काम होता है पैसे से, भारत में कितने लोगों को घर मिलता है, हम एनजीओ से पैसा देते हैं। भाई तेरे अच्छे काम के लिए बुराई नहीं कर रहे हैं, जो तू बुरा काम करता है ना किसी देश में, उसके लिए रेगुलेशन की जरूरत है। तू बांग्लादेश में भी अच्छा काम करते करते वहां पे सरकार ही पलट दिया, तू धीरे धीरे श्रीलंका में भी कांड कर दिया, तू नेपाल में भी कांड कर दिया, तो अब भारत की बारी है, तो भारत इससे जानता है ये सब चीजें, इसीलिए ना यूएस को मिर्ची लग रहा है। और यूएस ना खुद अपने देश में, ये जैसे हम लोग अपने देश में एफसीआरए बिल लेके आए, यूएस अपने देश में ना फारा चलाता है। फारा, ये फारा क्या है देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ये है वो फारा का मीनिंग है द फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये वाला जो है ना 1938 में यूएस में लॉ बनाया गया था इसको। मतलब अगर कोई भी फंडिंग यूएस में मिल रहा है ना तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा यूएस के गवर्नमेंट से, उसके बाद ही आप कोई फंडिंग यूएस में रिलीज कर सकते हैं। ये सभी के लिए देख रहे हैं आप, who lobby, advocate or do public relation work in the United States on the behalf of foreign governments, parties or principal to register with the US Department of Justice। इस जगह से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। भाई तेरा देश है और दूसरे का देश नहीं है, तेरे पास पैसा है तो तू भेजे जा रहा है, जहाँ पैसा भेज रहा है। एफसीआरए बिल का समर्थन उतना ही जरूरी है जितना हम देश में टेररिस्ट लोगों को मना करते हैं कि टेरर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टेररिस्ट अलाउ नहीं होना चाहिए। एफसीआरए बिल बहुत जरूरी है। किसी का पैसा अगर भारत में आ रहा है तो जेन्युइन कामों के लिए यूज होना चाहिए। किस किस जगह पे कहां कहां पैसा गया है, कितने लूप होल हुए हैं, उसका सही डायरेक्शन क्या है, ये जानना एक देश का हक है। और इसमें जो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं, जैसे आपने सुना होगा एमके स्टालिन जो तमिलनाडु का पूर्व सीएम था, वो लगा इसका विरोध करने, नहीं ये तो क्रिश्चियन के ऊपर वो है, डायरेक्ट लड़ाई हो रहा है क्रिश्चियन से। ये फालतू बात है। क्रिश्चियन कम्युनिटी भी, यहाँ के बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं जो ये चाहते ही हैं कि एफसीआरए बिल से सभी लोगों को पता चले कि भाई बिल आ रहा है तो ये यूज कहाँ हो रहा है, क्योंकि कोई भी ट्रांसपेरेंसी चाहता है और ये चीजें रहेगा। एक दो लोग को छोड़ के ना, बाकी हम 90% क्रिश्चियन को नहीं बोल सकते कि ये लोग अपोज कर रहे हैं। आप बहुत सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च में जाएंगे ना, आपको मिलेगा कि वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं एफसीआरए बिल का, कि फॉरेन से अगर कोई फंडिंग आ रहा है तो उसको दिखाइए। लेकिन साथ में वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि नेताओं के पास जितना पैसा जाता है ना, उसका भी रेगुलेशन होना चाहिए कि कितना पैसा ये लोग कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं। ये जो लाडली बहन योजना में 80,000 करोड़, 1,10,000 करोड़ ऐसे निकाल देते हैं, ये फंड जाता कहाँ है, ये कौन देखेगा, ये इनका भी बोलना सही है। और मैं दोनों बातों का समर्थन करता हूँ, एफसीआरए बिल का भी समर्थन करता हूँ, और जो नेता लोग पैसा खर्च करते हैं किसी के डेवलपमेंट में, ये प्रोग्राम में वो प्रोग्राम, ये सब का भी रेगुलेशन होना चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल से सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।